Good morning. Today I'm teaching you Business Study class 11th. This is chapter 3rd and I explained to you yesterday in my previous video global enterprises or multinational companies. Okay. As I explained you that features and merits of global enterprises. Now today I'll explain demerits of global enterprises or multinational companies. So first of all, first demerit is disregard of national priorities. Okay. So MNC invest their capital only in the profitable project without any regard to national priority of the host country. यहाँ पे जो MNCs हैं वो जो होस्ट कंट्री है जिस दूसरे कंट्री में वो अपने बिजनेस को कर रही हैं उस कंपनी के जो इकोनॉमी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं. वो सिर्फ इसमें अपना ध्यान लगाते हैं कि वो कैसे प्रॉफिट अर्न करें. जो भी उनके प्रोजेक्ट होते हैं दैट टोटली बेस्ड ऑन द हाउ टू अर्न द प्रॉफिट. सो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. Second, creation of monopoly. As we know that multinational companies give rise to concentration of economic power and monopoly in the host country. Though they are helping to boom up any of the host country's economy, but they are interfering also and they are playing the major role to develop the economy. So they are showing their monopoly also. तो इनसे उन companies की monopoly बढ़ जाती है क्योंकि वो मोरेवर सेक्टर को बूम करने में उस पर्टिकुलर होस्ट कंट्री का हेल्प करते हैं. तो दिस इज द सेकेंड मैरिट ऑफ डीमेरिट ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस, दैट इज क्रिएशन ऑफ मोनोपोली. थर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज. एज वी नो MNCs exploit the resources of the host country to maximize their global profit by exploiting lot of resources of a host country. By this they are duplicating the natural resources. अगर जो हमारी MNCs होती हैं होस्ट कंट्री में जाकर के अपने को डेवलप करती हैं, कोई गुड्स को वो क्रिएट करती हैं, तो वट एवर द रॉ मटेरियल दे नीड उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को वो एक्सप्लॉइट करती हैं. तो दिस इज द एंड दे गेट द प्रॉफिट. वो खुद प्रॉफिट अर्न कर रही हैं और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करते हैं. ओके, दो दिस हेल्प अस ऑल्सो, बट this point we have included in demerits because they are exploiting our resources. Now fourth, obsolete technology. Obsolete means outdated. ये कंपनीज जो होती हैं ये ऑलरेडी अपने होम कंट्री में अपने टेक्निक को ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुकी हैं. गुड्स दे ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, बट नाउ व्हेन दे आर एस्टैब्लिशिंग देयर प्लांट इन होस्ट कंट्रीज, देयर the technique which they are using that is totally outdated. क्योंकि वो ऑलरेडी होम कंट्रीज के द्वारा वो चीज़ मार्केट में आ चुकी है. अब जो होस्ट कंट्रीज में जो प्रोडक्ट सामने आता है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का होता है. दिस इज ऑल्सो द डीमेरिट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. नाउ फिफ्थ, दैट इज थ्रेट टू नेशनल सर्विजिनिटी. दे कीप इंटरफेयरिंग द or we can say MNCs enjoy considerable political influence due to their huge operations. So they produce lots of commodity, they are produce huge operation. इनका जो operation होता है, जो इनका workout होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. So they keep influencing the political parties. So because they are using their power of money of the establishments in host countries, so they have enough power to influence and interferes in the political affairs of host country. तो जो political host countries, जो आपकी host countries होती हैं, उनके जो political कोई affairs हैं या politically अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस में वो मल्टीनेशनल कंपनीज टोटली इंटरफेयर करती है. इन कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता उस इकोनॉमी की पॉलिटिकल से, उस पर्टिकुलर कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी से. दे ओनली एस्टैब्लिश बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिट. सो दिस पॉइंट वी इंक्लूडेड इन डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस. नाउ द नेक्स्ट मेन topic of today is joint venture. As from the name it is indicating, joint means combine.
and venture means firm. So when two or more firms join together for a common purpose and mutual benefit, it is known as joint ventures. तो joint ventures क्या होती हैं? जब दो और more कंपनी आपस में मिल करके काम करती हैं किसी common purpose के लिए, जो उनका काम है, उनका जो मेन मोटो है वो सेम मोटो होता है, एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो आपस में जुड़ती हैं, काम करती हैं, तो ऐसी फर्म्स को हम जॉइंट वेंचर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर्स ऑफ बिरला विद यामा और मारुति विद सुजुकी. अगर हम जॉइंट वेंचर्स की बात करें तो इसमें बिरला आपके यामा के साथ जुड़ गई है एंड सेकेंड इज योर मारुति विद सुजुकी. अगर हम इसका सिंबल भी देखें, वन सिंबल इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक as picture will show in next paper, that is here it is given Birla Yama and below given Maruti Suzuki count on us, means इनको अब हम दोनों इन जो दो कंपनी से आपस में एक साथ इनको गिनते हैं. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर्स. फाइन. नाउ व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स, और क्या क्या ऐसे इनके फीचर्स हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि दीज वेंचर्स आर वर्किंग टुगेदर. द फर्म में बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन्ड और अ फॉरेन कंपनी. जो भी ये फर्म होती हैं, ये फर्म या तो प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकती है और फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं जॉइंट वेंचर्स के अंदर. ठीक है, कोई ऐसा बैरियर नहीं है, देयर इज नो एनी ऑब्स्टिकल फॉर एनी ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट ओन्ड है या फॉरेन कंपनी है, कोई भी कंपनी आपस में मिल करके जॉइंट वेंचर्स बना सकते हैं फॉर अ कॉमन पर्पज, और वी कैन से फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट. नाउ सेकेंड, जॉइंट वेंचर्स आर वेरी यूजफुल. ये जो जॉइंट वेंचर्स होती हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और टू कोलैबोरेट ऑन अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट. इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, या हम कह सकते हैं इनके जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं वो लॉन्ग टर्म भी स्ट्रेंथन करते हैं एंड शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं, पावर देते हैं. इट इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर एनी ऑफ द जॉइंट वेंचर्स कि ये लॉन्ग टर्म का है या ये शॉर्ट टर्म का है. ठीक है, जब तक वर्क वो करना चाहते हैं तब तक वो आपस में मिल करके काम करते हैं. नाउ फर्म्स एंटर इनटू जॉइंट वेंचर्स फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और मूविंग इनटू न्यू मार्केट, पर्टिकुलरली इन अनदर कंट्री. सो बेसिकली जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, किसी नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करने के लिए, किसी नई टेक्निक को किसी नई कंट्री में, होस्ट कंट्री में डेवलप करने के लिए, दे मूव फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट, दे मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड दे combinedly do the work with another companies. So it is not fixed, there is not a particular place fixed for the joint ventures. Okay, next, joint venture involves pooling of resources and expertise by two or more business in order to achieve a particular goal. एक जो particular goal ये few of the companies आपस में set करते हैं, इनका जो goal होता है that is fixed not by the one expert of a particular firm, but it is the goal of all the companies which are combinedly doing the work. जितनी भी कंपनीज आपस में एक साथ काम कर रही हैं, ये सभी कंपनी का एक ही मोटो होता है, एक ही पर्टिकुलर गोल होता है, और जितने भी इनके सिंगल एक्सपर्ट पीपल होते हैं, दे combinedly do betterment, take the decisions for the betterment of a particular goal for a single goal. The risks and reward of the business are also shared. और कोई भी रिस्क होता है, कोई भी प्रॉफिट होता है, any reward combinedly they bear. A joint ventures may also arise between firms of different countries. However, in such case, firms will have to comply with the provisions provided by the government of the two countries. हाँ,
हम कह सकते हैं कि जो ये कंपनी आपस में मिली हुई हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कंपनीज आपस में मिलती हैं, ये जो कंपनीज होती हैं, ये जो पर्टिकुलर कंपनीज की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं, रूरल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनको भी फॉलो करना ज़रूरी होता है. नाउ द मेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉइंट वेंचर्स इन इंडिया, जॉइंट वेंचर्स कंपनीज आर द बेस्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस. अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी ग्रोथ है, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द जॉइंट वेंचर्स, बिकॉज हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, either they haven't sufficient amount of fund or they haven't sufficient amount of technique. So in this condition they need support of multinational companies. So there are no separate laws for these joint ventures, and companies incorporated in India are treated the same as domestic companies. So if we talk about in India, we haven't some hard rule and regulations for such type of companies, those who are coming and combinedly doing the work with our domestic companies. Okay, now formation of joint ventures. So we have three forms through which we form our joint ventures. First is transfer of business to new company. Now in this, it is the first way to form a joint venture, that is when two parties incorporate a new company. जब दो कंपनी आपस में मिल करके एक नई कंपनी को बनाती है, उस कंडीशन में वो अपने शेयर दूसरी पार्टी के लिए इशू करती है, और जो अनदर पार्टी, जो दूसरी पार्टी है, वो पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा जो शेयर इशू किए गए हैं उनको कैश के रूप में खरीद करके आपस में एक फॉर्म रेडी करते हैं. नाउ न्यू जॉइंट वेंचर्स कंपनी, जो न्यू जॉइंट वेंचर्स कंपनी जो आपस में मिली हुई हैं, इनके